سورت آل عمران اور آیت نمبر ہے 68 سورہ آل عمران آیت نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت آل عمران آیت نمبر 68. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. محترم ناظرین و ناظرات، مومنین کرام، سخاوت القرآن کے نام پر بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن کی آج نشست نمبر 69 ہے. نشست نمبر 69. آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 68 سورہ آل عمران کی. آیت نمبر 68 میں ایک کلیہ بیان ہو رہا ہے. ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مسلمانوں میں ایک کنٹروورسی چلی تھی کہ ابراہیم کا زیادہ قریبی کون ہے، کیونکہ یہ تینوں مذاہب ابراہمک ریلیجنز کہلاتے ہیں یا ریویلڈ ریلیجن تین کہلاتے ہیں، المذاہب الثلاثہ. تو آیا یہودی زیادہ قریب ہیں ابراہیم سے، نصرانی یا مسلمان؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، ابراہیم سے قریبی وہ ہے جو ابراہیم کا فالوور ہو، وہذا النبی، اور یہ جو آخری نبی ہے یہ ان کا زیادہ قریبی ہے. نبی آ رہے ہیں 4000 سال کے بعد، اور قرآن کہہ رہا ہے ھذا النبی، یہ نبی. تو پتہ چلا اگر کاز ایک ہو تو 4000 کا فاصلہ سمٹ کے لمحے میں آ جاتا ہے. واللہ ولی المؤمنین. یہ آیت دیکھ لیں، پھر اگلی آیت کی تشریح بیان کرتے ہیں. ان تحقیق اولی الناس، افضل بندہ بندوں میں سے، قریبی بندہ، زیادہ خاص بندہ کون ہے؟ بے ابراہیم، ابراہیم سے، للذین اتبعوہ، وہ جو اتباع کریں، جنہوں نے اتباع کی ابراہیم کی. بلکہ اتباع مذکر ہے، اتباع کیا، یہ اتباع کی غلط ہو جائے گا. اطاعت کی اور اتباع کیا یہ مذکر ہے. جی. وہذا النبی، اور یہ جو رسول ہیں آخری، یہ ان کے قریبی ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ قریبی ہے. اب یہ بات نکل گئی نا، کافر نکل گئے خود بخود. واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، ولی ہے. اب ایک بات جو اگلی آیت میں 69 میں یہ کہی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی، چاہتے تھے کہ مسلمان کنورٹ ہو جائے. یہ 9 لکھا چرچ میں مجھے بھی خط آیا، میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے باقاعدہ 9 لکھا چرچ کا میں گریجویٹ ہوں، میں نے پوری کرسچینٹی پڑھی ہے الحمدللہ، بائی میل ڈاک سے، باقاعدہ میرے پاس ڈگری ہے.
تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں نولکھا چرچ والے کہ آپ کو وہ کنورٹ کر دیں مسلمانوں کو. تو یہ پرانی ان کی عادت ہے اہل کتاب کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو حق سے ہٹا دیں. اس کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا جا رہا ہے. اور پھر اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اللہ کے نشانیوں کا کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم آئی وٹنس ہو, تمہارے سامنے اللہ کی نشانیاں آ رہی ہیں, معجزے اللہ کے. پھر کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. حق و باطل میں گڑبڑ کیوں کرتے ہو, حق کو چھپاتے کیوں ہو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ذرا پڑھ لیں 3 آیتیں پھر آگے پڑھتے ہیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, کہاں اہل کتاب کے گروہ نے, مدت چاہا, مودت اسی سے خواہش کی. کیا خواہش کی؟ لو یضلونکم, انہوں نے خواہش یہ کی, بہت چاہا انہوں نے کہ تمہیں راہ راست سے گمراہ کر دے مسلمانوں کو. وما یضلون الا انفسهم, وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون, آپ کا ایک بڑا ماتمی زنجیر مارنے والا مرتد ہو گیا ہے یہاں, ہاں نیو یارک میں. تو اس کی ماں نے مجھے بتایا اور اس کا باپ یہاں آیا میرے پاس. تو ایک کوئی لاہور کا پریسٹ ہے, فادر, اس نے اس کو کرسچن کر دیا. کرسچن ہو گیا ہے تو سید وہ, مگر اب وہ کرسچن ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں امریکہ کے, یہ ایسے نہیں ہیں. یہ بالکل آپ کو نہیں کہتے کہ آپ کنورٹ ہو, بلکہ یہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو کنورٹ کر لیں. جب میں کنورٹ کر رہا تھا, ماسٹر جی یاد ہوگا 2000 کتنے ہو گئے, 2001 تو ہو گئے الحمدللہ. تو مجھے کچھ لوگوں نے ڈرایا دھمکایا, یہ جو لیڈر ہیں ہمارے لیڈر ٹائپ لوگ, فصلی بٹیرے, کہیں امریکن گورنمنٹ آپ کو تنگ نہ کرے. میں نے کہا وہ تو الٹا ہمیں شاباش دے رہے ہیں کہ اچھی بات ہے تم اگر کنورٹ کر رہے ہو, اچھا کام کر رہے ہو تم. وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد نہ بناؤ, بالکل وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمان نہ بناؤ. تو یہاں امریکہ کے کرسچن میں اور جیوز میں میں سمجھتا ہوں زیادہ وسعت ظرفی ہے بنسبت پاکستان یا انڈیا کے جیوز یا کرسچنز کے. اس زمانے میں یہ گمراہ کرتے تھے, چاہتے تھے گمراہ کریں. وما یشعرون, انہیں کوئی شعور نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون باللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. وانتم تشہدون, حالانکہ تم گواہ ہو, تمہارے سامنے آیتیں آئیں, تمہارے سامنے معجزے آئے, اور پھر بھی تم انکار کر رہے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, اے اہل کتاب کیوں حق و باطل کا لباس پہناتے ہو. حق کے اوپر پردہ نہ ڈالو, حق و باطل کا لباس نہ پہناؤ, حق کو گڑبڑ نہ کرو باطل سے. وتکتمون الحق, اور کیوں چھپاتے ہو حق کو. وانتم تعلمون, حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اس آیت میں آیت نمبر 72 میں ایک اور مسئلہ ہے. کرسچنز اور جیوز کا ایک عجیب کام تھا, ان کی خواہش یہ تھی کہ صبح کے وقت وہ مسلمان ہو جائیں اور جب سورج غروب کرے تو پھر واپس چلے جائیں. اس کا تذکرہ آ رہا ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. گروہ کہتا تھا ایک اہل کتاب کا,
आमिनु बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनु, ईमान लाओ उस पर, उस किताब पर जो नाजिल हुई है अहले ईमान पर। वजहन नहारे, सुबह सवेरे, वजहन नहार जब सूरज का चेहरा, वजह चेहरे को कहते हैं ना, जब चेहरा दिखाए सुबह सूरज। हाँ, वक्फुरू आखिरहू, और इनकार कर देना आखिर नहार में, मगरिब के वक्त इनकार कर देना। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अपने दीन से फिर जाएं। इस तरह घुस के भी लोगों को गुमराह कर लेना। अला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, ए मुसलमानों तुम एतबार न करना मगर उसका जो तुम्हारे दीन को फॉलो करे, ज़बानी कलामी दाखिल हो नहीं, फॉलो करे। हमारे यहाँ ये जो कन्वर्टेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो दूसरे मज़ाहिब से कन्वर्ट होके आए, उन्होंने सबसे ज्यादा हमारी शीयत को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया। जितने कन्वर्टेड लोग थे उन्होंने हमारे लोगों को बेईमान बनाया है, बदकिरदार बनाया है, बदअमल बनाया है, बदअकीदा बनाया है। आज भी ऐसा ही है। आज भी बहुत सारे जो कन्वर्टेड लोग हैं, हिंदू से हो गए या किसी और मजहब से आ गए या फिरके से आ गए, क्योंकि उनकी बाइंडिंग्स उधर होती हैं, अंदर से तो वो वही मजहब रखते हैं, आकर बेचारे हमारे मिस्कीन लोगों को उनका पैसा भी लूटते हैं और उनको गुमराह भी करते हैं। इससे मुतवज्जे किया जा रहा है। वला तुमिनु, और एतबार न करो। ये तुमिनु इससे मुराद ईमान नहीं है। हाँ, शाबाश, यहां मुराद ये है कि जैसे डू नॉट बिलीव देम, ये जो बिलीव होता है ना बंदों को, एतबार वाला बिलीव, एतबार न करो मगर उनका जो तुम्हारे दीन के ताबे हों। वो जो आपको कह रहे हैं ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाने का सवाब 1 लाख हज के बराबर है, खुद लूट भी रहे हैं आपको और आज तक इमाम हुसैन का रोजा नहीं देखा। आप जरा देखिए, तकरीबन जितने आपके फन्ने खान अल्लामे पाकिस्तान के हैं, ऑलमोस्ट ये 2 नंबर के अलामा में से किसी ने ज़ियारत नहीं की करबला की या नजफ की, किसी ने न, किसी ने हज किया। उसकी वजह यह है कि उनका जाब हज ज़ियारत नहीं है, उनका जाब तो डुगडुगी बजा के आपके अकायद और अमाल से खेल कर अपनी तिजोरियां भरना है। इनका एतबार न करना। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, फरमा दीजिए कि तहकीक हिदायत वो है जो हिदायत अल्लाह की हो। ये हिदायत थोड़ी है ये जो 2 नंबर के खतीब करते फिरते हैं। अन योता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, हिदायत तो वो है जो खुदा की हिदायत हो। यहूदी बाहम ये भी कहते थे कि अन योता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, उन्हें ऐसा दीन क्यों ना दे दिया गया जो दीन आपको दिया गया मुसलमानों। और युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, या ऐसा ही उन्होंने झगड़ा किया इंद रब्बिकुम, अल्लाह के पास, अल्लाह के बारे में उन अहले किताब ने झगड़ा किया। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, फरमा दीजिए फजल अल्लाह के हाथ में है। योती है मन यशा, जिसे चाहता है देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, गोया यानी और युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, आपके रब के बारे में मेरे हबीब कोई झगड़ा करे आपसे तो ये बेसूद है, झगड़ा क्यों कर रहे हो। कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह खास करता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह साहिब फज़ल अज़ीम है। आयत नंबर 75 में एक बहुत जबरदस्त पैगाम है, ये जरा पहले सुन लीजिए आप। कहा यह जा रहा है कि अहले किताब में कुछ लोग तो वो है कि आप उन्हें ढेर सोने चांदी के दे दें, पैसे के दे दें, वो उसमें से जर्रा बराबर रखेंगे नहीं, आपको अमानत वापस करेंगे। और बाद ऐसे हैं उनको एक अशरफी देंगे तो उसी को ही हड़प कर जाएंगे। मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि आप लाखों करोड़ों दे दें, 1 सेंट खर्च नहीं करेंगे। और बाद ऐसे भी हैं जिनको हमने सेंटर के थोड़े से पैसे दिए हैं, $150 दिया है, आज तक हमारे गले थक गए मांग मांग के, वो $150 वापस नहीं आया। आज भी लोग ऐसे हैं, कल भी ऐसे लोग थे। वमिन अहलिल किताब मन इन तामन हो बिकिंतारी युवद्दिही इलैक,
اور اہل किताब में से बाज लोग वो हैं कि अगर आप अमानत में दे दें किंतार कहते हैं ढेर को, ढेर बड़ा, युवद्दिही इलैका, वो अदा करेंगे, युवद्दिही इलैका, वो अदा करेंगे आपकी तरफ। वमिनहुम मन इन तामनु बिदीनार ला युवद्दिही इलैका, बाद ऐसे भी अहले किताब है कि अगर उन्हें आप एक दीनार दे दे, दीनार यानी अशरफी, ला युवद्दिही इलैका, वो आपकी तरफ पलटाएंगे नहीं, इल्ला मादुमता अलैहि कायमा, मगर ये कि सिक्योरिटी गार्ड बन के उनके ऊपर आप खड़े रहे। अगर तो आप खड़े हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के तो फिर तो वो दे देंगे आपको। अगर आप जरा सी आंख उधर करेंगे तो फौरन वो पैसा खा जाएंगे। ये बदउनवानों की मजम्मत हो रही है और दयानतदारों की तारीफ हो रही है। वो दयानतदार काबिल तारीफ है कि जो मुसलमान भी ना हो मगर दयानतदार हो, और वो मुसलमान काबिल मुजम्मत है कि हो भी मुसलमान मगर वो बेईमान या ईमानदार अमानतदार ना हो, खाइन हो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील, ये इसलिए भी कहते हैं यहूदी नसरानी कि हम पर कोई एतराज तो आएगा नहीं, हमारी प्रोपेगेंडा की मशीनरी बहुत तेज है, लिहाजा हम पे कोई एतराज थोड़ी आएगा, हम पैसा भी खा जाएंगे। और ये जो उम्मी है, ये गंवार देहाती, ये जो अनपढ़ है, इनको क्या पता, इनके पास तो ऐसा टूल ही नहीं कि हमें बदनाम कर सकें। वयक़ूलून अलल्लाहिल काज़िबा वहुम यअलमून, वो अल्लाह पर तोहमतें लगाते हैं हालांकि वो जानते हैं कि काम गलत है। बला, हाँ, मन औफा बिअहदिही, जो अल्लाह के साथ, अल्लाह के वादे के साथ वफा करे, वत्तका, अपने वादे की वफा करे और डरे अल्लाह से, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, ताकि अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरत। इस आयत में एक और बात बड़ी जबरदस्त कही जा रही है कि जो लोग अपने वादों और अपनी कसमों के एवज थोड़ी थोड़ी कीमत लेकर बिक जाते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, ना अल्लाह उनकी तरफ नजर फरमाएगा, ना उनको पाक करेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, ताकि वो लोग जो खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, यूं कहें बेच देते हैं, बिअहदिल्लाह व अयमानिहिम समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत देकर खुदा से किया गया वादा और कसम उठाई गई कसम, थोड़ा सा मुआवजा लेकर वो फिर जाते हैं अपने अहद से, कसम से फिर जाते हैं थोड़े से मुआवजे के एवज। मुआवजा ले लिया, कसम तोड़ दी, ये यानी ये बिजनेस कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना, ताकीक वो लोग कि जो यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, अल्लाह के वादे और अपनी कसमों को तोड़ देते हैं, बेच देते हैं, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत लेकर बेच देते हैं यानी फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। उलाइका ला खलाक लहुम, इनके लिए क़यामत में फिल आखिरत कोई हिस्सा ना होगा, खलाक हिस्से को कहते हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह इनसे गुफ्तगू भी नहीं करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, और ना इनकी तरफ देखेगा यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना इन्हें पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आज के दर्स की थीम यह है कि बंदे को चाहिए कि थोड़ी थोड़ी कीमत लेकर अल्लाह के आहद को या अपनी कसमों को या अपने मजहब को या दीन को, अकीदे को, ज़मीर को न बेचे, वरना क़यामत के दिन ना उसका कोई हिस्सा होगा, ना अल्लाह उसकी तरफ नजर करेगा, ना अल्लाह उससे बात करेगा और उसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। और ये कहना, यहूदियों नसरानियों की तारीफ करना, इस बात की दलील है कि अगरचे मजहब इस्लाम न भी हो मगर बंदा अमानतदार हो तो कुरान उस अमानतदार की तारीफ करता है, और बंदा खाइन हो और मुसलमान भी हो उसकी कुरान मजम्मत करता है। वो मौला अली का जुमला,
अल हुक्म यबका मअल कुफ्र वला यबका मअल जुल्म, इख्तिदार कुफ्र से बाकी रह सकता है, जुल्म से बाकी नहीं रह सकता। या अल्लाह इस दर्स का सवाब रमज़ान के सदक़े में, कुरान के सदक़े में, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन को, सैयद ज़ैन अब्बास शाह बुखारी के मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को, ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, ज़ुबैर गोंदल के मरहूमीन को, अली रज़ा नजफ़ी के मरहूमीन को, हसन चट्ठा के मरहूमीन को, सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को, हाफिज नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन को, मास्टर नियाज अहमद के मरहूमीन को, और हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को ईसाल फरमा, उनके सगायर व कबायर से दर गुजर फरमा। या अल्लाह हम सबको खुद्दामुल कुरान में करार दे, हम सबको गुलामान मोहम्मद व आले मोहम्मद में करार दे। आज के सबक से सबक हासिल करते हुए हम सबको अमीन बना, ट्रस्ट वर्दी बना, हम सबको बिजनेस में घाटे का सौदा न करने की तौफीक अता फरमा, तिजारतन लन तबूर करने की हम सबको तौफीक खैर मरहमत फरमा, कन्वर्ट करने की तौफीक मरहमत फरमा। जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, या अल्लाह उनको हिसार मोहम्मद व आले मोहम्मद में रख, हम सबका खातिमा अलल ईमान, खातिमा अलल खैर फरमा, हमारे बच्चों बच्चियों की सही तरबियत फरमा, हमारी कौम को दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, मराजे की जिंदगी दराज फरमा, हज व ज़ियारत नसीब फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। खास तौर पे जो 400 लोग बेचारे गर्मी की वजह से मर गए हैं कराची में, उनके दर्जात बुलंद फरमा और मौजूदा हुकूमत को ख़त्म फरमा, जो ख़जाने लूट रही है और अपनी तिजोरियां भर रही है और गरीब बिलख रहे हैं और गरीब मर रहे हैं। इन जालिम हुक्मरानों से, वाइट कॉलर हुक्मरानों से हम गरीबों के मुल्क के बासियों को नजात अता फरमा। इमाम ज़माना के साथियों में हमारा शुमार फरमा, हमारी कौम के जवान बच्चों को कुरान से फरार की बजाय कुरान से इश्क व मोहब्बत अता फरमा। जो बच्चों को नहीं ला रहे सिपारे में, प्रोग्राम में, उनको लाने की तौफीक अता फरमा। हमारी कौम को 5 नमाजों में आने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।